Okay, a very good evening to one and all. Hope my screen is visible and I am audible to each and every one. Is that visible? Screen visible? I am audible to everyone. Quickly, guys. Chaliye, without wasting any further time. So we will try to discuss as many as questions. Let's see how the things tune out. We have time till 9. So how much time we can devote in the first half for this purpose, and then followed by the class regarding the environmental chemistry. So we were discussing till 57. We are done. Now we will start with question number 58. So question number 58 directly belongs to the question on soil without any doubt. So as we can see here, it's a simple question directly from the booklet based on soil. So it says question number 58, choose the incorrect statement. So point to be noted, they are asking about incorrect statement. They are not asking about the correct statement. So you have to be alert, right? You have to be very much alert. They are asking about incorrect statement, guys. They are not asking about the correct statement, right? So one by one we will go along with, and then we will first do the minor surgical operation of this question, and then the major one with all the explanation. So let's have a look at what it says. So let's examine the first statement. Clay particles act as a collide in water. This is 120% true. Multiple times this fact have been asked in NTA, that clay particles act as a collide in water, and colloidal particles have negatively charged, and that's why the cation exchange capacity are there, and lots of questions have been asked. So definitely speaking, this statement is correct. The first statement is correct here, right? Then they ask that the pH of the soil, right? So second statement, they said the pH of the soil tend to buffer against large increase in the pH as they have reserve acidity. So absolutely true. We also said that the humus which is present into the soil act as a buffering agent or act as a buffer because it has reserve acidity and basicity. So this statement is also correct, right? As far as the soil is concerned, and it is taken from your booklet directly, these initial two lines, right? I already mentioned you. Third, this was the part of our class lecture also. I explained multiple times. Precipitation reaction does not help in retaining heavy metal in soils. Come on, guys. I have already told you that whenever we have like I mention you about the aluminum phosphate. I mention you about the calcium phosphate and why they get precipitated, right? So I mention you these reactions, if I remember, into the soil when I was teaching soil, that whenever calcium combine with phosphate, we form calcium phosphate precipitate in soil, right? Calcium phosphate and get precipitated into the soil. I also told you the story of aluminum phosphate. When aluminum combine with phosphate, it also form aluminum phosphate precipitate into the soil when we were doing soil. So it should have written the line like precipitation reaction do help in retaining the heavy metal. So that's why third statement is incorrect. और यही आपका आंसर होगा. Fourth statement, as mentioned here, we can visualize what they are saying. Replacement of natural long-rooted vegetation by wheat and other shallow-rooted crops can increase the soil salinity. This is absolutely true. If you replace the phreatophytes like or the long-rooted vegetations by small rooted vegetations, it definitely increase the soil salinity. I will tell you the reason why. So as per the first look, we say that only third statement is correct. So correct answer here is 3. But let's go with the logic, that how the logic help it. Precipitation reaction does not help in retaining heavy metals in soil. This statement is wrong. Actually, precipitation reaction helps in retaining heavy metals into the soil, right? So this should be the correct answer here because they are asking incorrect. So correct answer is third. Let's see with the conclusion and the logics why it is so. So the moment we try to trace the conclusion and the logic for each of them, let's have a look why we said so. That only the third statement is incorrect, the rest are correct. So let's examine one by one.
So the first fact, which is directly taken from your booklet, that clay particle act as acolytes. This is correct because clay particle are extremely small, less than 2 micrometer, and possess high surface area to volume ratio. In water, they remain suspended and exhibit the characteristic properties such as colloid, a heterogeneous mixture where one substance or microscopic particle is dispersed throughout another substance, and they carry negative charge, I already told you, which allow them to absorb ions and precipitate in the process like cation exchange capacity. It is a critical property of the soil. So this we are already familiar with, and this is a correct statement. Right. This is a correct statement. Nobody can say that this is incorrect. So this is a correct statement. We're done with the first one. Then we move to the second one. Why the second one is correct with logic, as I already told you, and they said that, sir, they said the pH of the soil, right? The statement was about the pH of the soil. So lower pH of the soil tend to buffer against large increase in the pH as they have reserve acidity. This is absolutely correct. And we know that buffer have reserve, the humus have reserve acidity or basicity because they act like a buffer. So third term, buffering in the soil tend to the soil resistance to change in the pH because buffer have reserve acidity and basicity. And how we define buffer is that buffers are the solution which resist the change in the pH of a solution on the addition of a small amount of strong acid or strong base. So in acidic soil, low pH H plus ion are present both in soil solution and adsorb onto the negatively exchange site of clay organic matter. This is a reserve acidity. When a base which would increase the pH is added, in the first reacts with a large pool of the reserve acidity H plus ion, aluminum 3 plus ion. You people are aware that aluminum 3 plus ion is the acidic cation, H plus ion is also there. We have studied this in soil. And this reaction consumes the added base and preserve a sharp immediate rise in pH of the soil solution, thus buffering of the soil against the large pH increase. So buffering the soil against the large pH is also observed. So basically the humus which is there, they act as a buffer and it provides the cushion. So this statement is also correct, guys, as far as the question is concerned. Coming to the third statement, which is there, let's have a look at how it is different from the other two and why it is incorrect. Like I have also given you the example that precipitation reactions actually play a very important role for the settlement and the absorption and retention of the heavy metals. यहाँ पे लिखा है not, which is already incorrect indicator. So precipitation reaction does not help in retaining heavy metals, right? So precipitation reaction does not help in retaining heavy metals ions, right, in soil, right, which is absolutely incorrect statement and which is the correct answer. This statement is false. Precipitation is one of the most significant mechanisms for retaining immobilizing heavy metal in soil, which reduce their availability to the plants and groundwater. A precipitation reaction occurs when the heavy metals like lead, cadmium, etc. reacts with a common soil anion like phosphate, carbonate, or hydroxide to form solid insoluble compound. Like I have given you examples of calcium phosphate and aluminum phosphate. For example, in alkaline soil, lead may precipitate or highly insoluble lead to carbonate, lead carbonate, or lead hydroxide, effectively trapping the heavy metal. So that's why this statement is incorrect because ये तो बहुत help करते हैं. तो यही correct answer है आपका third और ये incorrect है. That's why we have made this odd one thing out. Fourth one, which says something that replacement of long-rooted vegetation. So replacement of natural long-rooted vegetations by wheat and shallow-rooted crops can increase the soil salinity. How they make it saline? Why the salt are increasing when we replace them with short crops instead of very long trees or the vegetations? The reason is quite simple. The statement relates to the process of secondary salinization, often caused by change in land use. So land use अगर change होगा, तो secondary salinization process can take place. Long-rooted native vegetation like deep-rooted trees or shrubs are highly effective at absorbing large volume of water from deep into the soil, producing the amount of water that percolate past the root zone. तो अगर ज़्यादा लंबी roots होती है तो वो deep horizon से भी absorb कर सकते हैं. We have seen this. When these are replaced by shallow-rooted crops like wheat or other annuals, less water is transpired. तो water का transpiration कम होगा, guys, leading to net increase in the deep percolation and the recharge of the groundwater table. As the water table rises, it brings dissolved salt close to the soil surface. वो salt को ऊपर लेके आएंगे. Capillary action draw this saline water to the surface where it evaporates,
leaving the salt behind and thus increasing the soil salinity. क्योंकि जो नीचे सॉल्ट गया हुआ उसको भी तो ग्राउंड वाटर टेबल अपने साथ ऊपर लेके आता है ना, तो वो भी एक ड्रॉबैक है. And definitely after the evaporation the salt will be leave behind if it come to the surface. So that's why this statement is also correct कि अगर आप long rooted plants को short rooted plants से replace करते हैं तो secondary salinization का issue होता है, salt आपके बढ़ेंगे, soil में salinity बढ़ेगी as we have seen in the case of saline soil. तो ये आपको ध्यान रखना है. Is the things clear till here to each and every one? Question number 58. Anyone having any doubt till here? Quickly, guys. Question number 58. The correct answer is third. Hope all the logics and everything is clear that precipitation reaction does not help in retaining heavy metals in the soil is a wrong statement. Absolutely wrong statement. Clear है सबको? जल्दी बताइए. Anyone having any doubt till here? Quickly, guys, see that your response will matter and understanding the logics also. Anupriya, Ekta, Janit, Aruna, Mittal, Priya, Savita, Shiva, Shruti, all the people who are here. Not only the one, everyone and all. Clear? Chaliye, let's move to the next question, which is question number 59, which also do some justified actions needed. So let's do question number 59. Very good question. Again, it's a repeated concept. Urban island heat effect. You have multiple times heard about this thing, right? Again, it's a question from air pollution and climate change, the unit which have definitely given a very good impression on the mind of the people. In this exam, particularly, almost 17 questions were there. So question number 59, it says, choose the incorrect statement about heat island. Yeah, heat islands. So guys, we are well aware the cities like Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai, all these cities are like wherever we have the city areas in the daytime, it absorbs the coal tar road or the concrete roads which are black in color. They absorbs a lot of heat in summer. And in the night time, they release that heat, which basically creates a local warming near the ground. और बहुत आपको heat up feel होता है, even in the sun is set. That kind of phenomena is basically called urban island heat effect. और इस पे पहले भी क्वेश्चन आए, पहली बार क्वेश्चन नहीं आया, तो I would say it is a related repeatedly asked concept, urban island heat effect, right? तो हीट आइलैंड इफेक्ट्स जो है वो पहले भी आए हैं और दिल्ली को खास तौर से इसमें हाईलाइट किया गया मल्टीपल टाइम्स की कॉन्क्रेटाइजेशन जो है वो इस चीज को बढ़ाता है. यहाँ पे भी आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है गाइस, राइट? तो यहाँ पे भी वन बाय वन पहले हम माइनर डाइसेक्शन करेंगे क्वेश्चन का. लेट्स हैव अ लुक एंड देन वी विल गो विद द लॉजिक. इट सेज लो सरफेस एल्बिडो इज लाइकली टू कॉज अर्बन हीट. नो, लो सरफेस एल्बिडो होगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ना भाई. सरफेस एल्बिडो जैसे आपकी ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. लो सरफेस एल्बिडो इज लाइकली टू कॉज ऑफ अर्बन हीट, राइट? ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कम रिफ्लेक्ट करता है. लो सरफेस एल्बिडो का मतलब है लेस रिफ्लेक्टिंग, मोर एब्जॉर्बिंग, राइट? क्योंकि डार्क कलर की रोड होती है आपकी, कॉन्क्रेटाइड रोड होती है, ब्लैक कलर की कोल्टार की रोड होती है, एसफॉल्ट की रोड होती है. तो लो सरफेस एल्बिडो का मतलब होता है मोर एब्जॉर्प्शन, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Low surface albedo means low reflectance means more absorption. तो यही तो रीजन है. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट इट सेज दैट, पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो गया. सेकंड स्टेटमेंट दे सेड surface albedo is also referred to as short wave reflectivity. Absolutely true. Albedo is also called as reflectance or you say short wave reflectivity क्योंकि जो सन से रेडिएशंस आती है उनको हम शॉर्ट वेव रेडिएशंस बोलते हैं. जो अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर रेडिएशन वापस जाती है उनको हम लॉन्ग रेड रेडिएशन बोलते हैं. तो शॉर्ट वेव रिफ्लेक्टिविटी इज एन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर सरफेस एल्बिडो. ये माइंड में रखना है. एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट एज फार एज द लॉजिक इज कंसर्न. देन कम्स टू थर्ड. इट सेज दैट शेडिंग एंड इवेपोट्रांसपिरेशन. अगर आप किसी को शेड अप कर देते हैं
राइट, है ना। अगर आप ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाते हैं, ठीक है, शेडिंग कहने का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आप ट्री लगा रहे हैं और आपके प्लांट जो है यूआईपो ट्रांसपिरेशन ज्यादा कर रहे हैं, बाय अर्बन फॉरेस्ट्री कॉज अर्बन हीटिंग, नहीं भाई, ये अर्बन कूलिंग कॉज करता है, ये अर्बन हीटिंग कॉज नहीं करता, क्योंकि ट्री लगाने से तो आपका जो है कूलिंग बढ़ती है, हीटिंग नहीं बढ़ती। इवेपो ट्रांसपिरेशन से भी कूलिंग बढ़ती है। बाय अर्बन फॉरेस्ट्री तो अगर आप शेड करेंगे तो वो एरिया एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना, वो जो रोड होगी उसके नीचे वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी उतनी। तो शेडिंग से हमारी अर्बन हीटिंग नहीं होती है, अर्बन कूलिंग होती है, अर्बन हीटिंग कम होती है। तो इट डू नॉट कॉज होना चाहिए था। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग and hence this is the correct answer, but we will do the deep dissection of these. Coming to the statement fourth, coral cool roofs और green roofs, या तो आपकी ग्रीन रूफ्स हो, कूल रूफ्स कहने का मतलब होता है आप लाइट कलर की बनाएं जो रिफ्लेक्ट ज्यादा करें, एब्जॉर्ब कम करें, हैव हाई रिफ्लेक्टिविटी एंड कॉज अर्बन कूलिंग, एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आपको हीटिंग नहीं करानी है तो आप ग्रे कलर का, व्हाइट कलर का, ऑफ व्हाइट कलर का रूफ टॉप यूज करें, राइट। उनको हम कूल रूफ या ग्रीन रूफ्स बोलते हैं, विच रिफ्लेक्ट मोर रेडिएशन, एब्जॉर्ब लेस रेडिएशन। तो आपकी अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट कम होगा क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन कम करेंगे। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप की आप लगाइए। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट गाइज। सो आफ्टर seeing all the options, we can firmly say the third is the correct answer. Let's investigate detailed logics about this. So third is the correct answer. Shading and evaporation by urban forestry cause urban heating. No, it do not cause urban heating. It basically help in reducing the temperature. Right? तो correct answer यहाँ पे third हो गया आपका. Now we will go one by one. Why this is wrong? That shading one and other three options I will talk about why they were right. So let's put some light over this. So shading and evapotranspiration by urban forestry causes urban heating. This statement is incorrect. Why? In fact, it opposite. It's true. Trees and other vegetation in urban area help to cool the environment and not heat. They do this through two primary mechanisms. दो होते हैं. एक तो पहला आपका हो गया शेडिंग. The canopies of tree block the incoming solar radiation, जो मैंने आपको बताया कि land absorb ही नहीं कर पाएगा उतनी, preventing it from reaching and heating up the surface like pavement and buildings. Second, evapotranspiration, जो tree leaves है उनसे evapotranspiration होगा. This is the process where plant release water vapor into the atmosphere, and this process require energy latent heat which is drawn from the surrounding air, thereby cooling it down. So these are the two reasons why the statement was uh, in support of urban cooling rather than urban heating. तो इसीलिए ये करेक्ट आंसर है क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है इट कॉजेज अर्बन हीटिंग. नो, इट डू नॉट कॉज अर्बन हीटिंग. Now let's see which were the statement which were correct. All the three statement, other three statements were correct. Let's see how they were correct and what was the logic behind them. Low surface albedo is likely to cause urban heat, right? ये भी आपका सही है क्योंकि रिफ्लेक्ट ज्यादा होगा. This statement is correct. Albedo is the measure of how much solar radiation a surface reflect. A low albedo means a surface absorb most of the sunlight that hits it. Urban areas are dominated by material like asphalt, जो black color का road होता है आपका, concrete, and dark rooftop which have very low albedo. They absorb a large amount of solar energy and re-radiate it as heat, contributing to the urban heat island effect. तो ये questions बहुत बार आए हैं पहले. That's why this statement was true. Then surface albedo is also referred to as short-wave reflectivity. Absolutely true. This statement is also correct. And solar radiation is primarily in the short-wave part of the electromagnetic spectrum, which is coming to the Earth's surface from the sun. And albedo specifically measures the reflectivity of surface to this short-wave radiations. And therefore, the term short-wave reflectivity is an accurate syndrome synonymous for albedo in this context. So you can say that albedo is okay. It is synonymous to short-wave reflectivity. So correct. Cool roofs or green roofs have high reflectivity and cause urban cooling. Absolutely true statement. And this statement is correct. Cool roofs are designed with highly reflective material, जो मैंने आपको बताया ज़्यादा से ज़्यादा reflect करेगा, to reflect sunlight and to reduce the absorption of heat. And green roofs are covered with vegetation and soil. उसकी greenery करेंगे छत की हम. Both type of roofs reduce the urban heat island effect, and green roofs provide cooling through shading and evapotranspiration, similar to urban forest, while cool roofs achieve cooling by reflecting sunlight and keeping the building and surrounding air cooler. So ये impact डालती है
और ये काफी जगहों पे देखा गया, बहुत सारे लोग अपने टेरेस को एज अ ग्रीन एरिया यूज कर लेते हैं, तो इम्पैक्ट पड़ता है गाइस, नो डाउट. So after looking into all the scientific facts and the logics, we reach to a conclusion that only statement third is incorrect. Right, first is correct, second is correct, fourth is correct, but third is incorrect, and they have asked incorrect. So the correct answer here is absolutely 3. No other choice. Shading and evapotranspiration by urban forestry cause urban heating. क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 59 जल्दी बताइए भैया, क्विकली रिस्पॉन्स करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट. Anyone having any doubt in question number 59? चलिए. Now let's move to the next question, which is basically question number 60. Once again, this question also fall into the regime of climate change and uh, you say evolution of Earth, I would say, right? It's a very good question and multiple times have been raised to different platforms, right? और कुछ हिंट भी हैं इस क्वेश्चन में गाइस, मैं आपको बता दूं, right? But before investigating the questions, let's have a look कि क्या ये क्वेश्चन कहता है. क्वेश्चन नंबर 60, right? Question number 60, what it says. Question number 60 says, arrange the following geological or paleoclimatic event from the oldest to the youngest. ये सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और फिर क्या हुआ. मीन्स रिसेंट टाइम तक आपको आना है, फ्रॉम द ओल्डर टू द रिसेंट टाइम, राइट. तो गाइज यहाँ पे एक सिंपल सा हिंट था. जब अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा था और इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात हो रही थी, तो जब हमारी ऑक्सीजन का जनरेशन हुआ था, उसी के बाद आपको याद होगा सारी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी. उससे पहले कोई डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी. तो आई विल गिव यू द एविडेंसेस ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल आल्सो, राइट. बट बिफोर लेट्स अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी की सबसे पुराना क्या है. भाई अब ऑब्वियस सी बात है, होमो सैपियंस तो ह्यूमन बीइंग है, बिना ऑक्सीजन के तो सरवाइव कर नहीं सकते. तो एक हिंट आपके पास ये भी था कि ये तो कभी भी पहले नहीं आएगा, ये तो तभी आएगा जब ऑक्सीजन आपकी बन जाएगी, राइट. तो लेट मी टेल यू द क्रोनोलॉजी फर्स्ट एंड देन वी विल कम टू द कंक्लूजन्स. कि सेटिंग अप ऑफ मानसून क्लाइमेट और इंडियन कॉन्टिनेंट, अपीयरेंस ऑफ होमो सैपियंस, अपीयरेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन ऑन अर्थ, लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा जो हमने बताया भी था आपको कि अराउंड 59 मिलियन ईयर्स अगो, जो हम डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन में, एंड डिपोजिशन ऑफ गोंडवाना कोल्स, राइट. इसके बारे में हम बात करेंगे. तो लेट्स गो डाउन फर्स्ट एंड देन कम बैक टू द क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग इनटू ऑल द लॉजिक्स की क्या है. तो देखिए, सबसे पहले जो इंसिडेंट हुआ है अर्थ के इवोल्यूशन की हिस्ट्री में, उसका नाम है अपीयरेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन ऑन अर्थ. क्योंकि ऑक्सीजन आई, ठीक है, आयरन ऑक्साइड से निकल के फ्री ऑक्सीजन जब आया, अगर आप इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को अच्छे से पढ़ें, तो अपीयरेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन ऑन द अर्थ वाज द ओल्ड ऑफ देम. जितने भी यहाँ मेंशन है, सबसे ओल्डेस्ट वही है. एंड दिस राइज द फ्री ऑक्सीजन, द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, and later oxygenation stem happened in the Archean पैलियोप्रोटियोजोइक इरा था. ये अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे पूछे. बाय फार द ओल्डेस्ट इवेंट लिस्टेड. जितने भी इवेंट ये ऊपर लिस्टेड है, इनमें सबसे पुराना यही था कि अपीयरेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन ऑन द अर्थ. विदाउट इसके कुछ पॉसिबल था नहीं. विदाउट इसके जब कुछ पॉसिबल नहीं था, तो अपीयरेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन ऑन अर्थ विल बी कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट वन, राइट. Then came the incident which happened immediately after this, that we have the deposition of Gondwana coals. ठीक है. तो जब आपका पुरानी थ्योरी हम पढ़ते हैं, ठीक है, यूरेशिया एंड गोंडवाना, ठीक है, ये सारे जो मासेस थे अर्थ के जो सेपरेट हुए थे, ठीक है, तो इनके बारे में अब तो उतनी बात नहीं होती, पर आपको ये पता होना चाहिए कि गोंडवाना कोल डिपोजिशन हैपन इनटू द पैलियोजोइक टू अर्ली मीजोजोइक इरा, ठीक है. और कार्बोनीफेरस टू पर्मियन आपका पीरियड था उस टाइम का, राइट. up to the Triassic and Jurassic in place. Put simple, roughly around 350 to 180 million years ago. MYA, है ना, 350 to 180 million years ago, commonly cited as Permian. पर्मियन कोल डिपॉजिट्स भी कहते हैं इसको. ये क्वेश्चन आता है कई बार कि पर्मियन कोल डिपॉजिट्स कौन से हैं, तो गोंडवाना कोल को ही पर्मियन कोल डिपॉजिट्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा. और ये सेकंड इंसिडेंट था, राइट.
जो इन गिवन इंसिडेंट में हुआ था अराउंड 350 to 180 मिलियन ईयर्स अगो। ध्यान दे वहां बिलियन है तो 10⁻⁹ होगा, या मिलियन है तो ये ऑब्वियस सी बात है उससे कम पुराना है, राइट। दैट वाज द ओल्डेस्ट वन। थर्ड, जब ऑक्सीजन आ गई और ये आपका सारा सेटअप हो गया, उसके बाद सेटिंग अप ऑफ द मानसून एंड क्लाइमेट, ये आपका एक्शन में आया, राइट। तो सेटिंग अप ऑफ द मानसून climate on the Indian subcontinent, this was the third thing which happened in the given event. The South Asian monsoon developed with the uplift of Himalayan or Tibetan plateau during the Neogene, जो आपका प्लियोसीन और मायोसीन पीरियड के बीच में था. Estimate placed the major establishment and intensification of the Miocene Pliocene tens of millions to few millions years ago के आसपास की इंसिडेंट है. Commonly cited as 20 to 7 million years with मॉडल लाइक बिहेवियर बाय द मायोसीन और प्लियोसीन. तो बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का ही क्वेश्चन था ये. एंड आफ्टर दैट जब ये इतना सारा काम हो गया कि आपका अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, डिपोजिशन ऑफ गोंडवाना कोल हुआ, सेटिंग ऑफ द मानसून क्लाइमेट एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके बाद कहीं जाके आपकी अपीयरेंस ऑफ होमोसेपियंस, जो आपका अर्ली मैन था. सो बहुत सारी वैरायटी है हाउ द मैन डेवलप्ड एंड द क्रेनियन कैपेसिटी डेवलप. एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, निएंडरथल, रामापथिकस, शिवापथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, है ना. बहुत सारे उसके अंदर आए, लेकिन हमें रफली बस ये याद रखना है कि अपीयरेंस ऑफ होमो सेपियंस टू द ह्यूमन बीइंग एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन अपीयर इन द फॉसिल रिकॉर्ड अबाउट 3 मिलियन ईयर्स अगो, राइट. इतने के आसपास appearance hui. And then once this was there, then we had last glacial maxima, right. ये आपको याद रखना है. Last glacial maxima, LGM, peaked about 26,500 to 19,900 years ago. And the most recent youngest event here, तो हम बोलते हैं ना कि लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा कब हुआ था, तो ये करीबन करीबन यही टाइम पीरियड है, 26,500 से लेके 19,000 साल पहले. मतलब ये तो ऐसे गिन रहे हैं हजारों सालों को जैसे कल की बात हो, ठीक है. ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन 60-70 ईयर है, एंड व्हेन वी स्टडी जियोलॉजिकल टाइम स्केल दे टॉक्स अबाउट थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर गो. सो इट मेक मी लाफ ऑलवेज कि भैया हम किस टाइम स्केल की बात कर रहे हैं जिसमें ना तो हम रहेंगे ना हमारी पूछते रहेंगे, कोई रहेगा पता नहीं, रहेगा नहीं, ठीक है. So last glacial maxima was the latest period. So now we can easily arrange them, that what happened first, what happened second, or the oldest one to the youngest one. And when you will arrange them, definitely speaking, the first options will have the correct probability here, and that will be the absolutely most appropriate answer. That first there was an appearance of free oxygen, then we had the deposition of Gondwana coals or Permian coals, and then we have setting up the monsoon climate on Indian subcontinent, followed by the ये एक्चुअली में बी इसके पहले आना चाहिए था, राइट. जो डी है उससे पहले बी आएगा, ठीक है, और डी सबसे लास्ट में आएगा. आई हैव वेरीफाइड फ्रॉम सम सोर्सेस. एंड बट ये एक इशू मैंने ऑब्जर्व किया है इस बार के एग्जाम में कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा है कि एक लास्ट की सीक्वेंस कई जगहों पे सही नहीं है. जैसे अभी एक दो क्वेश्चन और आएंगे, तो ये तो एक तरह का इस तरह का ऑब्जर्वेशन विच आई एम सीइंग कि अगर किसी ने उस क्वेश्चन को रेज नहीं किया है तो सीबीएसई ने उसको रेक्टिफाई करने का भी मादा नहीं समझा है. और ये भी ध्यान रखिए, अगर 5 चॉइसेस हैं और 5 में से पहली 3 करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज है गाइस, तो आपको आंसर वही लेना है. एनटीए ये कहना चाह रहा है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करो, बाकी भूल जाओ. यहाँ पे भी यही हुआ है. आइडियली बी शुड हैव कम बिफोर डी, जो हमारा लॉजिक कहता है. बी पहले आएगा और डी बाद में आएगा, जैसा कि हमने यहाँ मेंशन भी किया है, ठीक है. बट क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है एंड दैट इज द वन, तो आप ये ध्यान रखिएगा अपकमिंग एग्जाम में भी कि अगर 5 में से 3 या 4 के सीक्वेंस सही है, जैसे कल भी हमने लैंडफिल वाला क्वेश्चन देखा था, तो आप हिचकिचाइएगा मत उस ऑप्शन को ऑप्ट करने में, ठीक है. क्योंकि एनटीए के हिसाब से अगर कोई उसको रेज नहीं कर रहा है, उस पे कोई जो है क्वेश्चन नहीं आया है, कोई कंसर्न और क्वेरी नहीं आई है फ्रॉम स्टूडेंट साइड, या है तो हम तो उसको करेक्ट मान लेंगे जो आंसर इनिशियली सबमिट किया है एक्सपर्ट. बात समझ में आ रही है सबको कि कैसे रिएक्ट करना है इस तरह के क्वेश्चंस में? क्लियर है सबको?
क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इस पूरे पेपर में ऐसे हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। कल भी जैसे एक लैंडफिल वाला क्वेश्चन था, तो अगर 5 में से 4 या 3 चॉइसेस भी अप्रोप्रिएटली अरेंज है, आपको उसी को करेक्ट आंसर लेना है, या तो फिर वो ड्रॉप होगा। जैसे अभी एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 चीजें तो ठीक है, लेकिन 5वीं को थोड़ा सा गड़बड़ दिया है तो उसको ड्रॉप कर दिया गया, तो या तो वो ड्रॉप होगा या फिर उसको करेक्ट आंसर लिया जाएगा। तो आपको एक मैं हैक बता रहा हूँ, सिंपली एक तरीका है हाउ टू एस्केप सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम, कि आप सही रहें। नाउ लेट्स कम टू द 61 क्वेश्चन, राइट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, वेस्ट की साइड से आ रहा है गाइस, और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई इशू किसी बच्चे को होना चाहिए था as far as the question number 61 is concerned. So if we see question number 61, it says that which of the following is not an element and component of hazard and risk assessment of waste. तो इनमें से कौन सा हैजार्ड और रिस्क असेसमेंट ऑफ वेस्ट का पार्ट नहीं है, विच इज नॉट अ पार्ट। ये बड़ा आजकल ट्रेंड में आ गया है, नॉट, कि जल्दीबाजी में स्टूडेंट देखेगा नहीं, नॉट एन एलिमेंट एंड कंपोनेंट, राइट, किसका, हैजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ वेस्ट। तो हैजार्डस वेस्ट की आपको प्रॉपर्टी पता है गाइस, इन्फेक्टिविटी, रिएक्टिविटी, कोरोसिटी, टॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, ये सारी प्रॉपर्टी मैम ने आपको पढ़ाई। इसके बारे में पहले थोड़ी लाइट डालते हैं कि हैजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ वेस्ट में होता क्या क्या है, एंड विच वन अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट नॉट द करेक्ट आंसर और नॉट एन एलिमेंट, राइट। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कि क्या क्या एक्चुअली में होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से है, और जो एक रिस्क वाला चैप्टर है आपका गिलबर्ट में, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कहाँ कहाँ से चीजें पिक हो रही हैं। तो हैजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट इज अबाउट आइडेंटिफाइंग हैजार्ड, कैरेक्टराइजिंग एक्सपोजर और consequences, estimating likelihood and documenting controls and their regular context, राइट। तो यहाँ पे सीधा है कि जो 1 to 4 पार्ट है वो असेसमेंट के प्रोसेस के पार्ट है, बट फिर भी हम देखते हैं कि हाउ दे आर द पार्ट। प्रोसेस नॉलेज एंड डॉक्यूमेंटेशन, उस पूरे प्रोसेस की नॉलेज होना और उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, ये मैंडेटरी है। अगर कहीं पे भी आप ये कह रहे हैं कि साहब मैं जो है हैजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट कर रहा हूँ, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटोकॉल में आता है, ठीक है ना। तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटोकॉल में आता है, 110% आता है, उनके मॉड्यूल्स और मैनुअल्स में होता है, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग द OHS पेपर टू द UG 4 क्रेडिट कोर्स। तो मुझे ये बात पता है कि भाई, और ये आपके रिस्क वाले चैप्टर में लिखी भी हुई है गिलबर्ट में, तो प्रोसेस नॉलेज और डॉक्यूमेंटेशन, तो मतलब किस प्रोसेस पे क्या यूज हो रहा है, क्या हैजार्डस है, क्या नहीं है, उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। रिक्वायरमेंट टू नो व्हाट मटेरियल, रिएक्शंस एंड स्टेप्स एग्जिस्ट, उसकी इन्वेंट्री आपको पता होनी चाहिए, कितना केमिकल यूज होता है। फ्लो डायग्राम, किसके बाद क्या प्रोसेस होता है। और जो लास्ट में मेंशन किया गया ना, MSDS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। वो लग के लगाएंगे कि जो प्रोसेस में केमिकल यूज हो रहा है, ठीक है, MSDS उसका लगा होना चाहिए कि एसिड है, बेस है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कितना स्टॉक है आपके पास। तो ये MSDS मेंटेन रखने मैंडेटरी होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाके, जो ऑडिटर आते हैं, पोल्यूशन बोर्ड के लोग आते हैं, वो आपसे मांग सकते हैं कि हमें अपनी इन्वेंट्री बताओ कितनी है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट दिखाओ कि आप प्रोटोकॉल पूरे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फ्लो डायग्राम दिखाओ अपने प्रोसेस का, कहाँ कहाँ क्या हैजार्डस है, because I have been into the audits also from the side of boards, तो मुझे ये बात पता है कि ये चीज हम चेक करते हैं वहां पे। तो प्रोसेस की नॉलेज और डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी है। देन द नेक्स्ट थिंग, प्रोसेस एंड इक्विपमेंट इंटीग्रिटी, ये भी बहुत जरूरी है भाई कि आपकी मशीनरी ठीक हो, एवरीथिंग इज ऑन द मार्क। तो प्रोसेस एंड इक्विपमेंट इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आपका प्रोसेस और इक्विपमेंट इंटीग्रेट रहे। ये नहीं कि कुछ गड़बड़ है, आपको पता ही नहीं है, कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा। तो यूज टू जज द फेलियर मोड्स, कंसीक्वेंस एंड लाइकलीहुड, कि आपकी कोई मशीन खराब तो नहीं है, कोई पार्ट खराब तो नहीं है,
तो ये आपको पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग लीक पॉइंट, कहीं से गैस लीक हो रही है, केमिकल लीक हो रहा है, प्रोटेक्शन सिस्टम आपका पूरा है कि नहीं है, जो आपकी मशीनरीज हैं और जो वहाँ लोग काम करते हैं वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, उनके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है कि नहीं है, पीपीई है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो शूज है कि नहीं है ना, हार्ड हैट है कि नहीं है, गॉगल्स है कि नहीं है ना, और जो आपका हार्नेस है कि नहीं है, जो रस्सी होती है लटकने के लिए, तो वो चाहिए। थर्ड होता है आपका कि जो भी स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर फॉलो होते हैं आईएसओ के या रूल्स फॉलो होते हैं वो है कि नहीं, तो स्टैंडर्ड कोड्स लॉज एंड प्रैक्टिस, तो ये जरूर पता होने चाहिए। प्रोवाइड द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है, कि कितना आप अलाउ कर सकते हैं, कितना नहीं अलाउ कर सकते। रिक्वायर्ड कंट्रोल एंड क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेबल रिस्क एंड कंप्लायंस, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कितना डेली एक्सेप्टेबल रिस्क हम चला सकते हैं, कितना नहीं चला सकते, ठीक है, या फिर क्या क्या चीजें रूल्स एंड रेगुलेशन में आती है। ये तीनों चीजें आपकी पार्ट होती है अगर आप इफ यू आर प्लानिंग टू डू अ हैजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ वेस्ट पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो किसी भी जगह पे अगर आपका हैजार्डस वेस्ट यूज हो रहा है या किसी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, टू बी वेरी श्योर। बट एक प्रोसेस जो इन्होंने मेंशन किया है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेम which is here. By contrast, reduction in use of hazardous substance in a risk reduction or control prevention strategy. ये रिस्क को रिड्यूस या कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी, ठीक है असेसमेंट की नहीं है, ये कम करने की स्ट्रैटेजी है। जब भी आप कहते हो रिडक्शन इन द यूज ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस की हम उसका यूज ही कम कर दें, तो ये रिस्क कम करना हो गया ना, ये असेसमेंट तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कंपोनेंट ऑफ हैजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट तो नहीं हुआ, ये तो सीधा कम करना हो गया उसका। तो सोर्स सब्स्टिट्यूशन इनहेरेंटली सेफर डिजाइन इज एन एक्शन यू टेक एज अ रिजल्ट ऑफ असेसमेंट नॉट एन एलिमेंट। तो असेसमेंट के बाद किया जाता है ये कि भाई क्या हम इसमें से हैजार्डस क्वांटिटी को कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये एक तरह का आपका मेजर है, ठीक है। ये आफ्टर द असेसमेंट का एक आउटकम है, ठीक है। जी हाँ, ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, एब्सोल्युटली ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, ये पार्ट ऑफ असेसमेंट नहीं है। तो बस इतना ही फर्क था, and because of that we are able to neglect this, and the correct answer here is reduction in the use of hazardous substance. ये basically management of hazardous waste and risk management का पार्ट है, ये असेसमेंट का नहीं पार्ट है, ठीक है। असेसमेंट के बाकी तीनों पार्ट है, ये पार्ट है मैनेजमेंट का। तो ये आपको माइंड में रखना था कि ये पार्ट जो है ये हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का ये पार्ट है, और ये रिस्क मैनेजमेंट का भी पार्ट है अगर हम उसको कम कर देते हैं। एंड रेस्ट 1, 2 एंड 4 आर द पार्ट ऑफ द असेसमेंट, क्योंकि बस एक ही वर्ड से उसने क्वेश्चन को गलत करा लिया कि बच्चे को ये पता है कि नहीं है, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं गाइस जो आपको आते हैं, लेकिन आप छोटी सी क्विक एंड फास्ट रीडिंग की वजह से ये गलत कर देते हो। हाँ मित्तल, आप ठीक कह रहे हो, मैनेजमेंट का पार्ट है। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 61? द करेक्ट आंसर इज थर्ड। जल्दी बताइए भाई, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? क्विकली गाइस, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 62, ये आप देख सकते हैं, मैंने बाकी चीजें भी मेंशन की है कि हाउ टू थिंक अबाउट इट, कि कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम गैदर करेंगे इंफॉर्मेशन। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के छोड़ा आप लोगों के पढ़ने के लिए, यू कैन रीड दैट, कि हैजार्ड और रिस्क असेसमेंट वर्क फ्लो कैसे होता है। जैसे आप देखेंगे स्टेप वाइज जब हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में काम करते हैं, ठीक है, तो टिपिकल हैजार्ड रिस्क असेसमेंट वर्क फ्लो शीट इस तरह की होती है। कुछ मैं बता दूं आपको, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले गैदर द प्रोसेस नॉलेज एंड डॉक्यूमेंटेशन, फ्लो शीट इन्वेंटरीज एंड मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स,
आइडेंटिफाई द हैजार्ड, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, कौन कौन से हैजार्ड हो सकते हैं वहां पे, एनालाइज द फेलियर मोड्स एंड इक्विपमेंट इंटीग्रिटी, व्हाट कैन फेल एंड हाउ, क्या गलत हो सकता है, estimate consequence and likelihood, exposure pathway and scenarios, consult standard codes, laws, set acceptability criteria and requirement, and document findings and recommendation, risk reduction measures. तो सबसे लास्ट में है वो कि आप जो है उसको, जो स्टेप 6 है, where substitution reducing the hazard substance appear, it's a mitigation option या management option recommended because the assessment show unacceptable risk. तो जब भी रिस्क ऐसा आएगा कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तब हम कुछ रिकमेंड करेंगे या तब हम कुछ मैनेजमेंट के लिए टूल बताएंगे, अदरवाइज नहीं, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया जी, आ गया क्वेश्चन, आ गया आपका पेस्टिसाइड से, विच इज द क्वेश्चन नंबर 62। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 62। ये भी कुछ कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, बुकलेट से ही क्वेश्चन है, और ये गिलबर्ट मास्टर सॉरी मैनहैन की लाइन है गाइस। जब मैंने आपको ऑर्गेनोक्लोरीन फॉस्फेट और कार्बामेट पढ़ाया तो वहां पे एक लाइन क्लियरली लिखी हुई है कि डीडीटी का सबसे अच्छा जो रिप्लेसमेंट आया वो मिथॉक्सीक्लोर की फॉर्म में आया। जब आप पढ़ते हैं उस पेज को दोबारा से जाके तो आपको दिखता है वहां पे लिखा हुआ है कि डीडीटी का एक एनालॉग आया जिसका नाम था मिथॉक्सीक्लोर। वहीं से टीचर गॉट इंस्पायर्ड टू मेक दिस क्वेश्चन, राइट। लेट मी टेल यू, इसीलिए मैं वो 5 या 6 पेज आपको पढ़ाता हूँ हमेशा, ठीक है, क्लास के बाद, कि भाई ये वो एरिया है जहां से टीचर स्कैन करता है क्वेश्चन। वहां पे ये लाइन लिखी हुई है कि डीडीटी के जैसा ही जनरल साइज, शेप और सेम इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी का, बट बायोडिग्रेडेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से और बायोअक्युमुलेशन कम होने की वजह से वी गॉट द रिप्लेसमेंट। सो लेट्स सी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड क्वेश्चन। व्हिच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालॉग ऑफ डीडीटी। एनालॉग का मतलब होता है जो उसके जैसा दिखे, जिसकी एक्टिविटी उसके जैसी हो, right, but properties में कुछ difference हो, that have the same general size, shape and possess the same insecticidal property, but कुछ अलग भी तो होगा। अलग क्या होगा? but it is more biodegradable and less bioaccumulative। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका कंपाउंड है वो less bioaccumulative और more biodegradable होना चाहिए, and none other than methoxychlor is the answer because it is also an organochlorine। But let's investigate the options in detail and then come back and discuss the logic what is there। so let's talk one by one। हमें ये पता चल गया कि मिथॉक्सीक्लोर करेक्ट आंसर है, पर मिथॉक्सीक्लोर क्या है, क्यों है, और वाई पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन डीडीडी जिसको आप बोलते हो, which is a biodegradation product of DDT, as I told you that DDT, DDE and DDD, they have asked here DDT, है ना। तो ये तो हम करते ही हैं हर बार। तो why methoxychlor is the key analog? So methoxychlor is a synthetic organochlorine insecticide specifically developed as a structural analog of DDT। सिर्फ इस वजह से, क्योंकि एक्टिविटी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, और एक हमारे पास एडवांटेज था कि ये इजीली बायोडिग्रेडेबल था और बायोअक्युमुलेशन कम शो करता था एज कंपेयर टू डीडीटी के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कभी फ्यूचर में ये भी हो सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो लेस बायोडिग्रेडेशन, मिथॉक्सीक्लोर और डीडीटी में से। So with very similar molecular size, shape and insecticidal mode of action, however, methoxychlor is more rapidly metabolized and excreted in organism and more readily biodegradable in environment। ये जो पंच लाइन थी है ना मिथॉक्सीक्लोर की, कि क्यों मिथॉक्सीक्लोर ज्यादा पॉपुलर रहा, because it can get biodegraded very fast and it have less bioaccumulation capacity and more quickly biodegraded। So methoxychlor इसका replacement बन के आया। So it is less bioaccumulative than DDT while retaining good insecticidal activity। बस इस वजह से ये एनालॉग जो है पॉपुलर हो गया, और क्वेश्चन भी इसी थीम पे पूछा गया है कि कौन किसके बाद आया, राइट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन इजीली डू, which is here पैरा DDD, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन। तो पैरा डाइक्लोरो, वो पैरा कहो आप ऑर्था कहो एक ही बात है, ठीक है। तो एक्चुअली में नाम तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन है, डीडीडी जो आपको मैंने पढ़ाया था डीडीडी, बट पैरा आइसोमर लिया है। एंड दिस इज द मेन इम्प्यूरिटी एंड मेटाबोलाइट ऑफ डीडीटी, persistent and bioaccumulative like DDT, and it is not a safe, more biodegradable replacement, right। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सेफर और मोर बायोडिग्रेडेबल रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। रिप्लेसमेंट तो है या इसका बाय प्रोडक्ट तो है, बट दिस इज नॉट
मोर सेफर एंड इजीली बायोडिग्रेडेबल, तो इसको हमने निग्लेक्ट कर दिया। और ये आपको पता है DDT व्हेन गेट डिग्रेडेड फर्स्ट फॉर्म इट फॉर्म DDE, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोईथीन एंड देन इथेन, ठीक है ना। देन DDA which was the other option, dichloro diphenyl acetic acid, it is a degradation product of DDT, not used as a major insecticide and not considered the most important design analog with similar property। ये भी नहीं है क्योंकि ना तो ये डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ना तो ये इतना ज्यादा बायोडिग्रेडेबल है और ना ही ये एनालॉग है, उसकी जैसी प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद बात आती है टॉक्सोफेन की। पहले भी टॉक्सोफेन का डिस्कशन हुआ है कई बार जब हमने पढ़ी है मैंने। तो टॉक्साफीन अ कॉम्प्लेक्स क्लोरीनेटेड कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनोक्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीनेटेड कैम्फीन मिक्सचर, स्ट्रक्चरली वेरी डिफरेंट फ्रॉम DDT, इसकी स्ट्रक्चर ही अलग होती है। एंड इट इज हाईली परसिस्टेंट, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एनवायरमेंट में बहुत रहता है, एंड बायोअक्युमुलेटिव भी काफी ज्यादा है, तो इट इज नॉट एन एनालॉग DDT इन द सेंस आस्क। तो क्योंकि एक ही कंपाउंड ऐसा था जो उन क्वालिटी को मेंशन कर रहा था या मैच कर रहा था जो पूछी है टीचर ने, तो बिकॉज मिथॉक्सीक्लोर मैचेस DDT in general structure and insecticidal effects, but it is more biodegradable and less bioaccumulative, it is regarded as the most important analog of DDT meeting the conditions in the question asked। तो मैं फिर रुकूंगा नहीं, मैं सीधा कहूंगा जी मिथॉक्सीक्लोर ही वो कंपाउंड है जिसको इसका हमने रिप्लेसमेंट चूज किया। सो मिथॉक्सीक्लोर व्हिच इज ऑप्शन नंबर 3 व्हिच इज ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 62। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड से 2 क्वेश्चन इस बार टीचर ने पिक किए हैं गाइस, तो छोटा टॉपिक नहीं है, आपको पढ़ाया गया है इनिशियल फेज में ही, बुकलेट 1 में है पेस्टिसाइड, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 62 इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। जल्दी से बोलेंगे फटाफट से, क्विकली। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? जल्दी बताएंगे। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? चलिए जी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 63 गाइस। 63 क्वेश्चन पे हम चलेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, और ये कैसे कह दें कि ये सबसे सिंपल क्वेश्चन नहीं है। एनर्जी में इससे सिंपल क्वेश्चन मैंने इतिहास में आज तक नहीं देखा, और सबको ये बात पता है क्वेश्चन के पढ़ने से पहले ही एनर्जी का ये क्वेश्चन है, विंड पावर का ये क्वेश्चन है, विंड टरबाइन से ये क्वेश्चन है। हम जब से पढ़ना हमने स्टार्ट किया 2009-10 से, तब से लेके 2015 तक कम से कम 85 क्वेश्चन विंड टरबाइन के फार्मूले पे आ चुके हैं। हाउ यू कैन फॉरगेट अबाउट द मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ पावर जनरेशन या KCP, हाउ यू कैन फॉरगेट द बेट्स लिमिट। तो वहीं से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 व्हिच सेज इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड फ्रॉम एन आइडियल विंड टरबाइन इज। तो जब आप फार्मूला लिखते हैं गाइस, आपको सबको पता है ये बात, मैंने उस दिन में डिस्कस किया था व्हेन एनर्जी के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन को, दैट जब आप बोलते हो कि मैक्सिमम पावर जनरेटेड, तो हम लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है, KCP which is a constant and which is none other than 16/27 or 0.59 which is also called as Bates limit, half of rho AV cube। बस ये फार्मूला आपने लिखा तो आपको पता चल गया कि पावर मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V क्यूब के। इस फार्मूले में और भी इम्पैक्ट है, पावर मैक्सिमम इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। बेसिकली इस फार्मूले को ही सामने रख के टीचर ने क्वेश्चन बनाया है। पावर मैक्सिमम इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया, और अगर वो एरिया के प्रोपोर्शनल है तो वो पाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मींस पावर मैक्सिमम इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बस आप देखिए, एक हिट में इस क्वेश्चन को हम नेक डाउन कर देंगे। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ विंड वेलोसिटी। बिल्कुल गलत बात, अंडर रूट ऑफ वी के प्रोपोर्शनल नहीं है, वी क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत। अगर ये बोलता क्यूब तब मैं मान सकता था। सेकेंड स्टेटमेंट व्हाट इट सेज, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ विंड वेलोसिटी। आ गए लाइन पे गुरु, लाइन पे आ गए, क्यूब ऑफ विंड वेलोसिटी, सो इट इज अ करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर आपको मिल गया, लेकिन फिर भी बाकी स्टेटमेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं गाइस। थर्ड स्टेटमेंट कहती है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस। स्क्वायर रूट तो नहीं है, आर स्क्वायर के जरूर प्रोपोर्शनल है, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। इनवर्सली कहां है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है,
तो ये स्टेटमेंट भी गया रॉन्ग बॉक्स में. सो द करेक्ट आंसर इज 2. लेट्स सी द साइंटिफिक लिटरेचर व्हिच वी हैव गिवन हियर. और ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर 2 है. फार्मूला आपके सामने है गाइस. करेक्ट आंसर हो गया प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ विंड वेलोसिटी. फार्मूला आपके सामने है हाफ ऑफ रो ए बी क्यूब. यहाँ पे इन्होंने बेट्स लिमिट या मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं किया है. वो इनकी मर्जी है. जब मेंशन किया जाएगा तभी इंक्लूड करना है. मैंने बताया था थ्योरेटिकल मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम विंड टरबाइन. P is the power in watt. Rho density which is 1025 kg per meter cube for air swept area of turbine and V is the wind speed. और नीचे मैंने हर स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस किया है. यही चाहिए, लॉजिक चाहिए गाइस हमें. साइंटिफिक स्टडीज आर ऑलवेज बेस्ड ऑन लॉजिक. तो ये सोल्यूशन भी ABCD नहीं चाहिए. ABCD तो जमाने को पता है. ठीक है. जो 3-3 4-4 इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहे हैं बच्चे, जैसे अभी ये लड़की जो है दिव्या फ्रॉम दौलतराम कॉलेज एंड followed by some work in DPCC. She have qualified 4 interviews in row. IIT दिल्ली क्वालिफाइड है, आईसर मोहाली क्वालिफाइड है, नीरी नागपुर क्वालिफाइड है. तो वो ऐसे नहीं होता, वो डेप्थ से होता है गाइस काम. राइट. शी ज्वाइन IIT दिल्ली एंड वी आर हैप्पी विद फॉर हर कि उसने 1-1.5 साल मेहनत किया तो शी गॉट द आउटकम. राइट. तो यहाँ पे अगर इवैल्यूएशन करेंगे तो आप इवैल्यूएशन देख सकते हैं. प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ विंड वेलोसिटी, ये गलत बात है जी, इनकरेक्ट. V क्यूब के प्रोपोर्शनल है, हमने बताया आपको. प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ विंड वेलोसिटी बिल्कुल करेक्ट, यही है. पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ विंड वेलोसिटी. स्मॉल इंक्रीज इन द विंड पावर 3 गुना हो जाएगा. एंड देन वी हैड प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस. नहीं जी, ये गलत हो गया. R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा अगर पूछता है तो. And then we had the final statement inversely proportional to density. नहीं भैया, directly proportional to density. So on the basis of all these facts and evidences, the court says the correct answer is second, proportional to the cube of velocity. Anyone having any doubt till here? जल्दी बताइए. 63 में किसी को कोई डाउट है? जल्दी से क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे गाइस, क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे. क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहां तक? बस इनको आप अच्छे से डाइजेस्ट करें. डॉक्यूमेंट आपके पास है, वी हैव शेयर्ड. उसका रीजन यही है क्योंकि वी वांट दैट आवर स्टूडेंट शुड गेट द एज. वो एज यहीं से आएगा. बिकॉज लॉजिकली आई अंडरस्टैंड कि नोबडी हैव डन दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्क ऑन दिस डॉक्यूमेंट. तो हमें अपने स्टूडेंट को उसका एडवांटेज पूरा देना है. फॉर द इंटरव्यू पर्पस कह लीजिए, या फॉर द डेप्थ कह लीजिए, या फॉर द अपकमिंग एग्जाम कह लीजिए. तो ये जो मैंने आपको डाटा बताया है कि 2020 से लेके 2025, इसको आपको मुट्ठी में कर लेना है गाइस, सारे सॉल्यूशंस को. और उसके बाद फिर देखिए वो मुट्ठी जिस दिन एग्जाम में खुलेगी तो हाउ मच इम्पैक्ट इट विल थ्रो ऑन द एग्जाम. लिटरेचर आपने सारा पढ़ा है. हमारा लिटरेचर स्टैंडर्डाइज है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. बट फिर भी एक ट्रिक रहती है लास्ट में कि कौन सी सुपर ट्रिक है. सर्वाइवरशिप कर्व का क्वेश्चन आ रहा है. अगला क्वेश्चन 64, जो कि हमने डिस्कस भी किया था क्लास में कि सर्वाइवरशिप कर्व क्या है. ठीक है, दोबारा से बात कर लेते हैं सर्वाइवरशिप कर्व के ऊपर की जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व की बात है. जो लोग इकोलॉजी की क्लास में बैठे थे मेरे, उनको याद आ रहा होगा ये क्वेश्चन. हमने क्लास के टॉपिक खत्म होने के बाद ये डिस्कस भी किया था. राइट. तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 64 which says what? That select the incorrect statement about the population growth. पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप बताइए. लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम जाके पहले सर्वाइवलशिप कर्व के बारे में बातें कर लेते हैं, कुछ जो हमने यहाँ मेंशन की हैं सारी. ठीक है ना. तो 1 बाय 1 चलते हैं गाइस हम लोग. पहले सर्वाइवरशिप का एक अच्छा रिवीजन हो जाए यहाँ पे तो ज्यादा बढ़िया है. लेट्स हैव अ लुक. सर्वाइवरशिप कर्व शो हाउ द प्रपोर्शन ऑफ ए कोहर्ट स्टिल अलाइव चेंजेस. कोहर्ट का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर बोर्न एट द सेम टाइम. ठीक है. तो cohort still alive changes with age, summarizing age specific mortality कि कैसी डेथ रेट है, pattern in a population, and the classical 3 types are recognized: type 1, type 2 and type 3 survivorship curve. Many species show mixture of these shape across the life stage. ये कोई फिक्स नहीं है कि किस स्टेज में कौन सा फॉलो करेगा, बट यस 3 तरह के होते हैं और तीनों भी आ सकते हैं किसी की लाइफ टाइम में, और एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं. ठीक है, वो डिपेंड करता है.
तो if you observe the axis clearly, on the x-axis we have given percentage maximum life expectancy in years 0, 50 और आगे जाके 100 भी हो जाएगा, बट 100 साल तो आजकल जीना बड़ा मुश्किल है जिस तरह की एयर क्वालिटी है। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग, कितने इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं, और लॉग में वैल्यू है इसकी, लॉग स्केल है। तो हम वन बाय वन देखते हैं गाइस। इस तरह का कर्व, पहले अगर मैं बात करूं, जो यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह का कर्व, कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे एक्सपेक्टेंसी लाइफ की बढ़ती है वैसे वैसे आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम बच रहे हैं। आप देखेंगे जब मैं यहाँ आ जाता हूँ तो इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत कम बच रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है यही टाइप 1 में क्या होता है, कॉन्वेक्स कर्व होता है एक तरह का, आगे से आएगा, ठीक है। लेट लॉस, डे, काफी समय बाद ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। हाई सर्वाइवरशिप थ्रू आउट द लाइफ, सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। मेजोरिटी रीचेस मेच्योरिटी, मेजर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मेच्योरिटी तक पहुंचते हैं। टिपिकल के सेलेक्टेड स्पीशीज, जो मैंने बताया था आपको कि के सेलेक्टेड स्पीशीज होती हैं जिनका सर्वाइवल ज्यादा होता है। एलिफेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स और एनुअल प्लांट्स, तो साल में एक बार ही आपके फर्टिलाइज होते हैं, तो वो यहाँ पे फॉल करेंगे टाइप 1 में। ये तो हुआ एक डायग्रामेटिक इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अभी नीचे भी जाएंगे दोबारा से। फिर आता है टाइप 2। टाइप 2 कहने का मतलब ये है इस तरह से कि एक फिक्स रेट ऑफ मोर्टेलिटी है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में जाइए, ठीक है, या जैसे जैसे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी कम होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है जब ज्यादा है ऑर्गेनिज्म। लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी बढ़ रही है, ऑर्गेनिज्म थोड़े और कम हो रहे हैं, बढ़ रही है और कम हो रहे हैं, बढ़ रही है और कम हो रहे हैं और कम हो रहे हैं। ये पैटर्न फॉलो होता है कि जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होते चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डायगोनल टाइप, राइट। तो टाइप 2 डायगोनल कर्व बोलते हैं इसको। कांस्टेंट लॉस, की हर एज में लोग मरेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एज। एज का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नेचुरल प्रोसेस है कि हर एज ग्रुप का ऑर्गेनिज्म उस ग्रुप से मरेगा। ऐसे बर्ड्स है, छोटा बच्चा भी मर सकता है बर्ड का, बड़ी बर्ड भी मर सकती है, बूढ़ी बर्ड भी मर सकती है। रोडेंट्स हैं, चूहे हैं, जैसे छोटी चूहियां भी मर जाती है। हाइड्रा है ना, पेरिनियल प्लांट्स जो आपके थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, ग्रो करते हैं। टाइप 3 कर्व आता है एक, जो नीचे से होके आता है, इस तरह का पैटर्न आपको देता है गाइस, ध्यान से देखिएगा। इस तरह का पैटर्न कुछ कुछ मिलेगा। टाइप 3 कर्व कहते हैं इसको, है ना। ट्रीज जनरली ये शो करते हैं कि आपका जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो बहुत ज्यादा एज तक बहुत कम जिएंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल जब ज्यादा एज हो रही है तो ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल दिख रहे हैं आपको ज्यादा नंबर ऑफ एज पे। तो ये इनका लॉजिक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं टाइप 3 कनकेव कर्व, अर्ली लॉसेस, तो छोटे प्लांट जल्दी मर जाएंगे। देखते हैं ना आप, सैपलिंग में सर्वाइवल रेट कम होती है। लो मोर्टेलिटी आफ्टर मैच्योरिटी, देर से मरेंगे अगर एक बार बड़े हो जाएंगे। टिपिकल आर सेलेक्टेड स्पीशीज होती हैं, स्मॉल आर, ऑयस्टर, स्मॉल फिशेज एंड ट्री। इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने नीचे भी मेंशन किया है ना। तो सर्वाइवरशिप कर्व मैं बता चुका हूं क्या होती है, कि सर्वाइवरशिप कर्व एक्चुअली में क्या है। तो सर्वाइवरशिप कर्व प्लॉट्स एज ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल कोहॉर्ट स्टिल अलाइव ऑन वाई एक्सिस, अलाउइंग क्विक कंपैरिजन ऑफ व्हेन मोर्टेलिटी इज कंसंट्रेटेड इनटू द लाइफ साइकिल, कि कब किस स्टेज पे कितने लोग मरते हैं किसी लाइफ साइकिल में, दैट इज बेसिकली मेंशन। Curve are built from the life table that track cohort survived by age class, so reflect the underlying life history traits like parental care, fecundity and timing of reproduction। ये सब तो एक्स्ट्रा बातें हैं। टाइप 1 जो कर्व हमने देखी, जो ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट वगैरह के लिए होती है, उसमें क्या है, लेट लॉसेस, मतलब एक एज के बाद ही ऑर्गेनिज्म मरता है। जनरली सर्वाइवल रेट अच्छी खासी है, राइट, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी खासी डेवलप हो गई है अब ह्यूमन बीइंग के लिए, या आप कहें कि वेटरनरी सर्वाइवल के लिए। तो कॉन्वेक्स कर्व विद हाई सर्वाइवल थ्रू अर्ली एंड मिडिल एज फॉलोड बाय स्टीप मोर्टेलिटी इन द ओल्ड एज। तो आप देखेंगे कि 60-70 के बाद लोग ज्यादा जाते हैं, ठीक है, उससे पहले थोड़ा कम है। लाइफ हिस्ट्री ट्रेट क्या कहते हैं, फ्यू ऑफस्प्रिंग, हाई पेरेंटल केयर, लार्ज बॉडी साइज, लार्ज मैच्योरिटी, ऑफन अलाइन विद के सेलेक्टेड स्ट्रेटजीज, ये हमने पढ़े हैं। एग्जांपल्स में गाइस यहाँ पे आपके आ जाएंगे जी, ह्यूमन बीइंग्स, मोस्ट लार्ज मैमल सच एज एलिफेंट, मैनी प्राइमेट रेज विद एक्सटेंसिव पेरेंटल इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। टाइप 2 कर्व जो मैंने बताई, जिसमें चिड़िया आती है, मेरी बर्ड आती है, ठीक है,
तो टाइप 2 कांस्टेंट लॉस होंगे इरिस्पेक्टिव किस एज में है वो, शेप अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट, इंडिकेटिंग अ रफली कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग एट एनी एज, किसी भी एज में मर सकता है ऑर्गेनिज्म। लाइफ हिस्ट्री ट्रेट, मॉडरेट फैकेंडिटी एंड पेरेंटल केयर, मोर्टेलिटी रिस्क ज्यादा होते हैं, प्रिडेशन है, एक्सीडेंट है, डिजीज है, एंड रिलेटिवली एज इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल मेनी बर्ड्स लाइक सॉन्ग बर्ड जैसे होता है, सम स्मॉल मैमल्स लाइक स्क्विरल, गिलहरी जो है, सर्टेन रेप्टाइल्स एंड सम इनवर्टिब्रेट्स, तो ये सारे इस ग्रुप में आते हैं। देन वी हैव टाइप 3 जो मैंने बताया आपको, प्लांट जिस ट्री जिस कैटेगरी में आते हैं, अर्ली लॉसेस, कॉनकेव कर्व होता है, वेरी हाई मोर्टेलिटी अमंग जुवेनाइल जब छोटा होता है सैपलिंग, दैट मच हाई सर्वाइवर फॉर द इंडिविजुअल दैट रीच द लेटर स्टेज। लाइफ हिस्ट्री ट्रेट कहते हैं वेरी हाई फेकेंडिटी, लिटिल और नो। अभी ये आप समझ रहे होंगे साहब, जो क्या कहते हैं, ये बार बार टर्म आ रहा है, ठीक है। फेकेंडिटी क्या होता है? फेकेंडिटी होता है आपका पोटेंशियल, बायोलॉजिकल पोटेंशियल और कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। तो फेकेंडिटी मतलब हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग यू कैन प्रोड्यूस, है ना। फेकेंडिटी का ये मतलब होता है, ये ध्यान रखिएगा, फेकेंडिटी वर्ड जो बार बार यहाँ आ रहा है कि आपका पोटेंशियल ऑफ रिप्रोडक्शन कितना है, कितने ऑफस्प्रिंग आप प्रोड्यूस कर सकते हैं बीइंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो लिटिल और नो पेरेंटल केयर, प्रोपेग्यूज ऑफन आर सेलेक्टेड स्ट्रेटजीज इन वेरिएबल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल ऑयस्टर्स आपके and many marine invertebrates, the broadcast spawn many fishes, amphibians, frog, tadpole, many plants and insects। तो इसमें सारे ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज सबको ही फॉलो करे, राइट, है ना। तो मिक्स पैटर्न भी शो करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छा मेंशन किया है कि क्या क्या हमें मिक्स पैटर्न और नुएंसेस मिल सकती है इसमें। तो मैनी स्पीशीज शो मिक्स कर्व, फॉर एग्जांपल हाई जुवेनाइल मोर्टेलिटी रिजेंबल टाइप 3, देन अ नियर कांस्टेंट एडल्ट मोर्टेलिटी रिजेंबल टाइप 2। तो कई बार ऐसा भी होता है। सर्वाइवरशिप कैन वेरी विद स्पीशीज बाय सेक्स, हैबिटेट और कोहर्ट ईयर ड्यू टू डिफरेंट इन देयर हैजार्ड, ग्रोथ रेट एंड रिप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो ये चीजें मैटर करती हैं, जरूरी नहीं है कि फिक्स फॉलो करें, हाँ। और ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह का शो करते हैं, बट वी कैन नॉट अश्योर कि यही टाइप का फॉलो करेगा भाई, ऐसे ही चलेगा, वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, राइट। Then how to read and use them, identify when the curve drops steeply to pioneer life stage and highly mortality, the target conservation of management there, and compare the curve among population to infer the changes in environment, life history। ये सब आप देख सकते हैं कैसे होगा, नीचे कंपैरिजन टेबल भी हमने दिया हुआ है कि 1 2 3 टाइप का होता है, टिपिकल ट्रेड्स कौन से हैं और कॉमन एग्जांपल्स हमने मेंशन कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी जो हमें ये दिए हुए हैं ना स्टेटमेंट, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं भाई कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन कर्व को अब देख लेते हैं 64 में, क्योंकि इनकरेक्ट बताना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन अ पॉपुलेशन विद टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व, न्यूबॉर्न, जुवेनाइल एंड यंग एडल्ट्स ऑल हैव हाई सर्वाइवल रेट। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योंकि उनका तो डेथ ही होना है लेट स्टेज पे, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको तो कोई टाल नहीं सकता है। टाइप 1 के अंदर जैसे ह्यूमन बीइंग जिसमें आता है, एलिफेंट आता है, तो चाहे आप न्यूबॉर्न कहिए, जुवेनाइल कहिए या यंग अडल्ट कहिए, भैया तभी तो हो जाएगा ना बुढ़ापे में मरने के लिए जब वो जिंदा रहेगा, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट इट सेज दैट इन द पॉपुलेशन विद टाइप 2, जो कि बर्ड वाला था, in a population with type 2 survivorship curve, individuals have approximately constant chances of surviving from one generation to the next generation in their lifespan। तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड चांसेस ऑफ डेथ हर स्टेज पे इक्वल है। तो ये है असली खतरों के खिलाड़ी, क्या पता जिंदगी कब तक रहेगी, ठीक है। जब तक रहेगी कुछ ना कुछ कहती रहेगी, ये करना है, वो करना है, नेट क्वालिफाई करना है, पीएचडी करना है। तो ये वर्ड वाला सिस्टम ठीक है, क्या पता कब मर जाए। तो इनको जरूरत नहीं है कोई पीएचडी वीएचडी करने की या इतना नेट वेट क्वालिफाइड करने की, ठीक है, इनका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो ये कभी भी जा सकते हैं भाई, ऐसे लोग हैं, खतरों के खिलाड़ी टाइप के लोग हैं ये, राइट। थर्ड स्टेटमेंट, इन पॉपुलेशन विद टाइप 3, जो आपका ट्री का मैंने कर्व बताया था या फिशेस का बताया था, सर्वाइवरशिप कर्व, डेथ रेट्स आर वेरी हाई फॉर यंग इंडिविजुअल्स। ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, यंग वंस की डेथ बहुत ज्यादा होती है टाइप 3 में, हमने अभी देखा। और चौथा स्टेटमेंट जो निराले टाइप का स्टेटमेंट है, सर्वाइवरशिप कर्व कैन नॉट वेरी अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज
बिटवीन मेल्स एंड फीमेल इन अ पॉपुलेशन, भैया इट कैन वेरी। यही तो फर्क है कि ये फिक्स नहीं है। तो सर्वाइवरशिप कर्व कैन वेरी अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज, बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स ऑल्सो, तो इट कैन वेरी, यही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और इसीलिए ये करेक्ट आपका आंसर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है और उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सो द करेक्ट आंसर हियर इज फोर्थ वन। क्लियर है सबको? जल्दी बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 64 क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? जल्दी से। चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पे। ठीक है, इनको वर्कआउट करना है गाइस, और बहुत अच्छे से वर्कआउट करके जाना है। ऐसा वर्कआउट करके जाना है जो इंडिया में किसी दूसरे ने ना किया हो, तब तो आप एक्चुअली में एज के मतलब लायक हो, या आपको एज मिलेगा। जो किसी ने वर्कआउट ना किया हो, ऐसा वर्कआउट करके जाना है। जून के जो दोनों पेपर है उस पे तो आप देखिएगा, और बाकी मैंने बताया है कि 2020 से 2025 तक ऐसा वर्कआउट करिए उन पे, चाहे वो PYQ क्लाउड की हेल्प से हो, चाहे ये डिस्कशन की हेल्प से हो, चाहे आपके सोल्यूशन की हेल्प से हो, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, वर्कआउट होना चाहिए इन पांचों चीजों पे, अपार्ट फ्रॉम जो भी लिटरेचर आप पढ़ते हैं। दैट विल टेल यू कि फ्रेम ऑफ माइंड कैसा चल रहा है एग्जामिनर का, what he wants to throw out, what kind of logics, right? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 65। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, और मैम अभी ये स्टार्ट करेगी आपका रेडियो एक्टिविटी। मेरा भी लेक्चर पड़ा हुआ है जो आपको दिखता है 2025 जून के क्लाउड में। कुछ लिमिटेड ही लेक्चर है, 5 या 6 ही लेक्चर होते हैं इसके न्यूक्लियर के, और बुकलेट का ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। और इसमें बात इसलिए भी लाई गई है क्योंकि रशिया यूक्रेन वार हो रहा था, ये इसलिए भी क्वेश्चन लाइमलाइट में आया है, चेर्नोबिल डिजास्टर का विच हैपन इन 1985, राइट? और पहले भी चेर्नोबिल से क्वेश्चन आया है, वी कैन नॉट रूल आउट दैट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आई गेस ये जून से पहले वाले अटेम्प्ट में ही आया था, जहां मैंने इसका डिटेल डिस्कशन भी किया था कि कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो रिलीज हुए हैं, राइट? इनके ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। रेडियो एक्टिविटी से या न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन हर बार इससे आता ही है, ठीक है, विच कैन नॉट बी डिनाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, ध्यान दे इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, नॉट, तो इसको हाईलाइट कर लेना एग्जाम में कि नॉट पूछ रहा है, ठीक है ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज ऑफ डिस्पर्स्ड रेडियो एक्टिविटी, कौन सा डिस्पर्स रेडियो एक्टिविटी का कॉज नहीं था? अब डिस्पर्स रेडियो एक्टिविटी का कॉज तो वो नहीं होगा ना जो इवेपोरेट नहीं कर सकता। जो इवेपोरेट कर सकता है वही डिस्पर्स रेडियो एक्टिविटी कॉज करता है एयर में। ड्यूरिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट इन चेर्नोबिल यूक्रेन इन द ईयर 1985, इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये जिनॉन और पोटेशियम, आयोडीन, प्लूटोनियम, सीजियम एंड सीजियम 137, इनके आइसोटोप जो दिए हुए हैं, सीजियम, प्लूटोनियम, आयोडीन, जिनॉन और पोटेशियम। तो लेट्स इन्वेस्टिगेट देम कि कौन सा इनमें से ऐसा है जो इवेपोरेट नहीं करता। जो इवेपोरेट नहीं करेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डिस्पर्स रेडियो एक्टिविटी ओनली कैन बी कॉज बाय द substances or the gases or the liquid which can evaporate. डिस्पर्स रेडियो एक्टिविटी वही चीजें कर सकती है जो फैले। कोई जमीन पे पड़ा है तो वो तो नहीं करेगा डिस्पर्स रेडियो एक्टिविटी, उसको तो सॉइल जो है लपेट लेगी। लेट्स हैव द कंक्लूजन ऑफ दिस। तो चलिए जी देखते हैं कौन बनेगा इसमें। So the widely dispersed radioactivity from Chernobyl accident was mainly due to the volatile fission product. ये है मजे की बात कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वोलेटाइल हो और फिशन प्रोडक्ट बनाते हो, सच एज आयोडीन, सीजियम एंड टू अ लेसर एक्सटेंट नोबल गैसेस, जिसके अंदर आपके आते हैं जिनॉन और क्रिप्टॉन। ठीक है, ऑप्शन इन्होंने गलत दे दिया, ये समझ नहीं पाए। यही तो मैं कहता हूं एनटीए का ये जो राज है ना वो बड़ा गलत है। ठीक है, यहां देखिए सिंबल क्या बनाया हुआ है, पोटेशियम। पोटेशियम नहीं होता है, क्रिप्टोन होता है। अब कोई इस बात की कंप्लेंट करेगी साहब आपने तो सिंबल ही गलत लिख दिया। तो एनटीए में कुछ गोलमाल भी है गाइस, तो आपको उस गोलमाल को एस्केप करना है विद योर आईक्यू एंड इंटेलिजेंसी। तो इसीलिए मैं जब लिखता हूं तो मैं इन बातों का ध्यान रखता हूं कि बच्चे को किन चीजों को रूल आउट करना है। तो ये एक्चुअली में पोटेशियम नहीं है, पोटेशियम होता तो ये 40 होता, ये 85 क्रिप्टॉन है। ठीक है, विच इज अ रेडियो एक्टिव गैस, ग्रुप 18 का मेंबर है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, तो ये रेडियो एक्टिव गैस है।
तो यहाँ ये थोड़ा सा चकमा खा गए। अब ये कर रहे हैं क्योंकि किसी ने इसको रेज नहीं किया, ठीक है। अब रेज नहीं किया तो रेडार में नहीं आया। तो समटाइम जब उस समय आपसे मांगे जाते हैं कि भाई ऑब्जेक्शंस दीजिए, तो कई बार हम देखते नहीं है उतना ध्यान से कि क्रिप्टॉन का सिंबल क्या है, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक। द वाइडली डिस्पर्स रेडियो एक्टिविटी, the widely dispersed radioactivity from the Chernobyl accident was mainly due to the volatile fission product. जो भी volatile fission product थे उनकी वजह से रेडियो एक्टिविटी हुई थी। उसमें कौन कौन आ गया? आयोडीन आ गया, सीजियम आ गया और नोबल गैसेज आ गई, सम ऑफ द रेडियो न्यूक्लियाइड। तो नोबल गैसेज इसमें है, मतलब क्रिप्टॉन और जिनोन का नाम आएगा। एक एलिमेंट जो यहाँ मेंशन है विच इज प्लूटोनियम 239 विच इज यूज्ड इन बॉम्ब मेकिंग एंड रेडियो एक्टिव इज नॉन वोलेटाइल, इट्स रिफ्रैक्टरी। ये वोलेटाइल नहीं है, ये इवेपोरेट नहीं होता, ये वेपर्स नहीं बनाता। तो ये कैसी रेडियो एक्टिविटी कॉज करेगा? डिस्पर्स रेडियो एक्टिविटी। तो वहीं पड़ा रहेगा जहां है। एंड इट्स रिलीज रिमेन लार्जली कन्फाइंड टू द क्लोज इन अ 30 किलोमीटर जोन। तो वहीं रहेगा, नीचे उड़ के एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, जहां तक सॉइल तक रीच है नीचे वहीं रहेगा। सो इट वाज नॉट अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ डिस्पर्सल रेडियो एक्टिविटी ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शंस को चूज किस वजह से किया गया, कि कौन इवेपोरेट कर सकता है, कौन वोलेटिलाइज हो सकता है। तो लेट्स एग्जामिन दीज ऑप्शंस। जिनॉन एंड क्रिप्टॉन नोबल गैसेस है, बिल्कुल इवेपोरेट करेगी, डिस्पर्स रेडियो एक्टिविटी कॉज करेगी। लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव नोबल गैसेस जिनॉन क्रिप्टॉन वाज रिलीज and disperse quickly into atmosphere because they are gases and they are very volatile। ये gases हैं, बहुत ज्यादा volatile है। ये तो ये काम पक्का करेगी 110%। nobody can stop them, right? ये तो है। सेकंड, आयोडीन 131, ये भी रेडियो आयोडीन है, रेडियो एक्टिव है। तो आयोडीन 131 was most of the important radionuclide for population exposure, about 50-60% of the core inventory was released and it spread widely causing major thyroid doses। तो ये भी ध्यान रहे कि वाटर में ये पोल्यूटेंट होता है पर सॉइल में नहीं होता है, मैंने बताया भी हुआ अपने वाले कोर्स में। और ये भी इवेपोरेट करेगा, तो ये भी है। उसके बाद बारी आती है गाइस प्लूटोनियम की। प्लूटोनियम उसमें पीछे रह गया। प्लूटोनियम इज अ रिफ्रैक्टरी एलिमेंट। रिफ्रैक्टरी एलिमेंट होते हैं जिनके ऊपर इवेपोरेशन इजीली नहीं होता है, which are resistant, right? So also all the released plutonium stayed heavy fuel particle that fell out near the plant। वो इतना भारी है कि वहीं जमीन पे गिरा। with contamination essentially confined to the local 30 kilometer zone rather than dispersed over a long distance, therefore it is not considered as a major cause of dispersal radioactivity। तो यही वो है जो डिस्पर्सल रेडियो एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा। देन वी हैव सीजियम 134 and 137, the lifetime being आपका जो मेंशन किया गया है इसके अंदर 30 years एंड देयर वी हैड ना, इनका लाइफ टाइम जरूर याद रखिएगा। जैसे आयोडीन 131 का 8.1 डेज है, ठीक है जी। और आपका जो सीजियम है और स्ट्रोंशियम है, इनका जरूर याद रखिएगा। जैसे हमने जब आपको ये चीजें बताई भी हैं, तो हमने वहां बोला है कि भाई लाइफ टाइम अगर सीजियम का बात करें 30 ईयर है, ठीक है। तो 30 साल इसका होता है, 8.1 डेज आयोडीन का होता है, ये सब बताया गया है, ठीक है उसमें। तो ये भी रहने वाले हैं, ठीक है। सीजियम आइसोटोप आर वोलेटाइल एंड सीजियम 134 स्पेशली were heavily released and becomes the dominant contributor to the long term contamination over a large area of Europe। तो अगर मुझसे कोई छुटपुट में पूछे भैया चेरनोबिल डिजास्टर में हवा में किसने पोल्यूशन कॉज किया, एयर में, ठीक है। थायराइड डॉज कहने का मतलब है, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था, कि जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है अगर वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो ये आपको थायराइड कैंसर कॉज कर सकता है। ये कहने का मतलब ये है ना। थायराइड डॉजेस कहने का मतलब ये है कि आपको कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो आपका, नहीं, हाँ वही है, वही थायराइड की बात हो रही है यहाँ पे। और हमने ये डिस्कस भी किया हुआ है अपने स्टडी मटेरियल में कि ये आपको थायराइड ग्लैंड का कैंसर कॉज कर सकता है अगर ये आपकी बॉडी के अंदर पहुंचता है, वो आपको मिल जाएगा वहां पे। बट ये ध्यान रखें कि जिनॉन जो नोबल गैस थी, क्रिप्टॉन जो नोबल गैस थी, ये आयोडीन, राइट, और सीजियम, ये एलिमेंट ऐसे थे विच वर देयर एंड स्प्रेड इन एयर, ठीक है। इनकी डिस्पर्स रेडियो एक्टिविटी थी। बट प्लूटोनियम ने सॉइल में पोल्यूशन किया एंड यस इट वाज द पार्ट
ये मेनली सॉइल में कन्फाइंड था, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है दोबारा रिवर्स होके, या किसी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि चेरनोबिल डिजास्टर छोटा मोटा डिजास्टर नहीं था। चेरनोबिल का अगर आप केस स्टडी पढ़े, यूजी में पढ़ाया जाता है, तो 5-6 पेज का तो केस स्टडी है चेरनोबिल डिजास्टर का, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है चेरनोबिल, विदाउट एनी डाउट। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको जरा माइंड में रखिएगा। और रशिया यूक्रेन वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज ही मैं न्यूज में सुन रहा था, फ्रेश अटैक करे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, है ना। तो अभी एंड अप नहीं हुआ है। आगे आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं। ये तो आपका फैक्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कोई बदल नहीं सकता। ये तो सदियों से आ रहा है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, बार बार आता है, 1000 बार आता है। यहां भी एनटीए ने एक कलाकारी कर दी। एनटीए ने क्या कलाकारी कर दी, पहले आंसर दिया था एक, और फिर बाद में आंसर बदल के कर दिए दो। क्यों? अपनी गलती पकड़ी गई। तो अपनी गलती पकड़ी गई तो कई जगह करेक्शन हो गई, बिकॉज पीपल रिपोर्टेड इट, तो दैट्स वाई दो आंसर देने पड़े, 2 और 4। वरना अगर गलती रहती तो रहती। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, डायरेक्टली आया हुआ है आपके, डायरेक्टली जो है वाटर से आया है, हैवी मेटल जहां पे हम पढ़ते हैं। बट लेट्स हैव अ लुक। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा डेप्थ में जाना है जब हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इट सेज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट फिर से आपको आइडेंटिफाई करनी है, इनसे बच के रहना भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट वालों से, ठीक है। ये आपको जरूर आइडेंटिफाई करने हैं। और अगर कंफ्यूजन होती है तो आपको जो रफ शीट मिलती है उस पर आप क्वेश्चन नंबर डालो, 1 2 3 4 लिखो, और टिक और रॉन्ग मारते जाओ, और फिर चूज करो कि कौन सा करेक्ट था। क्योंकि ये एक तरीका है बच्चे को ट्रैप करने का, मैं आपको बता दूं पहले से ही, ठीक है। हमें तो दिख जाता है, पर स्टूडेंट को उस प्रेशर में नहीं दिखता कई बार, है ना। तो कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें चूज करना है गाइस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन सारे के जो ऑप्शंस है उनको पहले डील कर लेते हैं, और बाद में क्वेश्चन पे आते हैं, या कहते हैं कि ऑप्शंस को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको कहता है क्रोमेट आयंस आर सॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए, क्रोमेट आयन का मतलब क्या है। क्रोमेट आयन होता है CrO4 2-, जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो मैं इसकी पहले कैलकुलेट करूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वाटर सॉल्युबल जो हेक्सावेलेंट क्रोमियम है, तो जब आप क्रोमियम को लिखेंगे ऐसे CrO4 2-, लेट अस सपोज मैंने क्रोमियम को x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, x+4, ऑक्सीजन का -2 शुड बी इक्वल टू -2। तो x-8 इज इक्वल टू -2। तो x क्या आ जाएगा जी आपका, +8 -2 विच इज +6। तो ये हेक्सावेलेंट क्रोमियम है, ये क्रोमियम 6+ है। और ये तो वाटर सॉल्युबल होता है, ये तो टॉक्सिक होता है। इसकी तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, इट इज टॉक्सिक एंड वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। बस जिसको ये नहीं पता था कि क्रोमेट आयन क्या होता है, वो शायद इस क्वेश्चन तक नहीं पूछा, पर ये रिपीटेड है, तो मल्टीपल टाइम आ चुका है। गिलबर्ट मैनहन में लिखा भी है, जहां मैंने से पढ़ाया था क्रोमियम को। तो मुझे नहीं लगता, और जो मैंने आपको लिंक दिया था एक हैवी मेटल का, वहां भी ये मेंशन है क्रोमेट आयन। दे आर जनरली soluble in water except when paired with certain cations like barium, lead, Ag+, which form insoluble chromate. However, the most cases chromate salt, सोडियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट आर हाईली सॉल्युबल। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए भैया, ये तो हो गया सही आपका, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है धुआंधार तरीके से, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन करेक्ट तो हमसे पूछा ही नहीं है ना, हमसे तो पूछा ही कुछ और है। सेकंड स्टेटमेंट, दे से अबाउट आर्सेनिक। आर्सेनिक के दो आपको पता है होते हैं, एक आर्सिनाइट, एक आर्सिनेट। तो ये भी मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूं। आर्सेनिक 5+, विच इज कॉल्ड आर्सिनेट, दिस इज नॉन टॉक्सिक, ठीक है। और आर्सेनिक 3+, विच इज आर्सिनाइट, ये आपका टॉक्सिक होता है, बस ये पता होना चाहिए। चलिए जी। और जो आर्सिनेट है वो वाटर में सॉल्युबल तो होता है, बट कम एक्सटेंट में होता है। तो यहाँ पे एक गड़बड़ी टीचर कर बैठा, देख लेते हैं। आर्सिनेट आयंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये क्या कह दिया आपने।
सॉल्युबिलिटी कम होती है बट कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं होगा। अब जैसे आर्सिनेट आयन है, आपको यहाँ हमने मेंशन कर दिया दैट आर्सिनेट आयन आर AS और 3 फिर मैं वही काम करूंगा, आई विल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। आर्सेनिक 4 और ये मैंने करवाया भी हुआ पहले, आया भी है। लेट अस सपोज आर्सेनिक को मैंने x मान लिया, तो x + 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 शुड बी इक्वल टू -3। तो x - 8 इज इक्वल टू -3 एंड x विल कम आउट टू +5। मतलब यहाँ पे जो आर्सेनिक है वो आर्सेनिक 5+ की फॉर्म में है, राइट। तो ये वाटर में तो सॉल्युबल है बट नॉन टॉक्सिक है, टिपिकली सॉल्युबल इन वाटर स्पेशली व्हेन पेयर्ड विद अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम आर्सेनाइड or ammonium ions. Some arsenate with heavy metals like lead arsenate are insoluble, but the general statement arsenate ions are insoluble ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ आर्सिनेट सॉल्युबल भी होते हैं। खाली एक लेड का आर्सिनेट है जो इनसॉल्युबल है, राइट। बाकी जैसे सोडियम आर्सेनाइड बोला, पोटेशियम आर्सेनाइड बोला, वो सॉल्युबल है। तो ये याद रखना है आपको। तो ये स्टेटमेंट एक तरह से गलत हो गई, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि सारे के सारे आर्सिनेट जो है इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आ गई जी गलत, ये भी गलत सेकंड में, ठीक है। और ये थर्ड स्टेटमेंट आपको कहता है आर्सेनाइट इज मोर टॉक्सिक देन आर्सेनेट, ये तो बिल्कुल सही बात है। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, पंचमुखी सदा सुखी। आर्सेनाइट क्या बोल रहा है? आर्सेनाइट मतलब क्या हुआ जी? आर्सेनिक 3+, और आर्सेनेट मतलब आर्सेनिक 5+। ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट ठीक हो गई थर्ड। तो एक्सप्लेनेशन की इसमें वैसे जरूरत नहीं है, बट फिर भी आर्सेनाइट अच्छा दिस, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही आएगी गाइस, कैलकुलेट करके देख लेना। इंडीड मोर टॉक्सिक देन आर्सेनेट, आर्सेनिक बाइंड्स मोर स्ट्रांगली टू थायल ग्रुप। थायल ग्रुप कौन सा होता है? SH ग्रुप। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था कि कैसे टॉक्सिसिटी कॉज करता है। सल्फोहाइड्रल ग्रुप तो थायल ग्रुप बोलते हैं, राइट। तो डिसरप्टिंग द सेलुलर फ्रैक्शन फंक्शंस मोर इफेक्टिवली, एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो गई। तो अभी तक सेकंड स्टेटमेंट ही हमें गलत मिली है। आगे चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 पे। 4 पे चलते हैं जी। क्रोमाइट, ये मजे की बात है, यहां पे आपको याद आती होगी अपनी 12th क्लास डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्रोमाइट ओर का, जहां पे एक्सट्रैक्शन क्रोमाइट इज मोर टॉक्सिक देन क्रोमेट। आई ना मजे की बात। क्रोमाइट होता है गाइज CrO4 2-। ये दिया ना जैसे आयरन क्रोमाइड है यहाँ पे। क्रोमाइट का मतलब ये है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्रोमाइट और ये है जैसे FeCrO4 2-, तो जब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, तो जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे गाइस, तो कैसे ब्रेक डाउन करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे FeCr2O4, इट विल ब्रेक डाउन लाइक Fe2+, ठीक है जी, है ना। हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, +Cr2O4 2-। अब यहां से मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूंगा पहले क्रोमियम की। क्रोमियम को मैंने x मान लिया, तो 2x + 4 इंटू -2 ऑक्सीजन के लिए शुड बी इक्वल टू -2। तो 2x - 8 इज इक्वल टू -2। तो 2x कितना आ गया गाइस? 2x आ गया +6। तो x क्या आ गया? +3। मतलब यहाँ क्रोमियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्रोमाइट में। क्रोमियम 3+ इज क्रोमाइट। एक बात तो ये हुई। दूसरा आपको मैंने करके दिखाया है ऊपर, क्रोमेट जो है, क्रोमेट विच इज क्रोमियम 6+ CrO4- से आप कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। तो क्रोमेट Cr6+, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हेक्सावेलेंट क्रोमियम इज हाईली टॉक्सिक, कार्सिनोजेनिक एंड मोबाइल इन द एनवायरनमेंट, व्हाइल ट्राइवेलेंट क्रोमियम इज लेस टॉक्सिक एंड लेस मोबाइल। अब इसमें स्टेटमेंट क्या बोला है? क्रोमाइट इज मोर टॉक्सिक। ये उल्टा बोल रहा है स्टेटमेंट को कि 3+ ज्यादा टॉक्सिक है। ऐसे कैसे भाई? ये कह रहा है 3+ क्रोमाइट इज मोर टॉक्सिक देन क्रोमेट क्रोमियम 6+। ये गलत स्टेटमेंट हो गया। क्रोमियम 6+ इज मोर टॉक्सिक देन क्रोमियम 3+। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो दो स्टेटमेंट मुझे ऐसे मिले इस क्वेश्चन के अंदर जो गलत पाए गए, विच वाज स्टेटमेंट नंबर 2 एंड
4। तो करेक्ट आंसर हो गया 2 and 4। करेक्ट आंसर इज 2 and 4। करेक्ट आंसर इज 2 and 4 बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, और रॉन्ग ही पूछा था। क्लियर है सबको? जल्दी बताइए फटाफट। 66। किसी को कोई डाउट है 66 में? जल्दी से बताएंगे गाइस, इतना टाइम नहीं लगाएंगे बॉस। ठीक है ना? चलिए भाई, आज की सभा यही समाप्त करेंगे बिकॉज आई नीड टू हैव अ क्लास ऑल्सो, राइट? तो इमीडिएटली हम क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना? उसको भी सभी अटेंड करें, ये रिक्वेस्ट है। जो लोग अटेंड करना चाहते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की क्लास है। सो सी यू गाइस इन 5 minutes फॉर द सेशन। आज का डिस्कशन हमारा यही है, पर ये आपको मैं अश्योर करता हूँ कि इन द अपकमिंग टाइम वी विल बी स्प्लिटिंग द सेशंस, और हम लोग अब जो है एक फिक्स टाइम इसके लिए डिवोट करेंगे फॉर द अपकमिंग 4-5 days, और ये आपका रिग्रेसली होके खत्म हो जाएगा। एंड होपफुली वी हैड अ सेशन ऑन संडे आल्सो in the morning hours so that we can push it up as early as possible. So see you guys in 5 minutes, right? तो मीटिंग आईडी और कॉल आपका सेम रहेगा, राइट? और लेट मी शेयर द न्यू वन। चलिए जी, टेक केयर।